Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concept. Today we'll be talking about the one topic that I could not complete in the last lecture. And do you remember? The last lecture we were talking about the virtual memory. और वर्चुअल मेमोरी का एक टॉपिक था जो लास्ट था, that was inverted page tables. So that I will complete it today. And next, very important concept of the memory management, which is the page replacement algorithm. हमने इसकी बात की कि कोई एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके तहत we could decide कि which page should be replaced, यानी कि कौन सा पेज जो है जो कि मेमोरी से डिस्क में वापस जाएगा. So before we start this page replacement algorithm, let us complete the incomplete topic of the last lecture, which is the virtual memory inverted page table. We said that the multi-level page table gets too big. Even we use the multi-level page table, yet they can go too big. कैसे भाई? In 32-bit address space, we have seen that there could be 1 million pages of 4K size. But what happens? मैंने आपको बताया था कि there are number of machines, a new concept for the Sun Sparc machine or the RISC-based machines, where the address space has grown up to 64-bit. Now, if the address space has grown up to the 64-bit, और जनाब अगर आप 4K बाइट का पेज साइज रखें, 12 बिट्स उसके भी चली जाएंगी. This is 2 to the power 52 entries in the page table. 2 to the power 52 entries का अगर आप हिसाब लगाना चाहें, और अगर हर एंट्री जो है वो हमारी हर एंट्री जो है वो 8 बाइट्स ले रही हो, अगर हर एंट्री अगर 8 बाइट्स ले रही हो, तो इट विल बी 30 मिलियन गीगाबाइट्स. 30 मिलियन गीगाबाइट्स. सो if each entry takes 8 bytes, then there will be 30 million gigabytes or 30 petabytes. It's a huge size, huge size. अगर आप उसके zeros लिखना शुरू कर दें तो it will take quite a long time जब वो आप वो सारी इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी फिगर है. हम ये assume करते हैं it's an infinite figure. तो अगर इतना बड़ा पेज टेबल का साइज हो जाएगा तो obviously it is not possible. So even if we could implement the multi-level page table, but yet the solution is not workable. So what can we do? We should find a solution, and the solution is inverted page table. What is inverted page table? Instead of creating the page table and use the page table to translate it into the physical pages or the page frame, why don't we do it reverse, inverted way? क्योंकि physical memory तो एक limited ही है ना. So we can maintain the physical memory page table and use it on the vice versa. But that is not the convenient way, because हम जब किसी instruction का address निकालेंगे, that address is generated with the help of the virtual address space. हमारे पास input में physical memory नहीं है. Input में जो हमारे पास है वो तो virtual address space है. हमने virtual address space से physical address space के ऊपर जाना है. Virtual address से physical address पे जाना है. Physical से virtual पे नहीं जाना. But yet we could see कि yes, can we do something about that? So we will keep one entry, real page frame, in the inverted page table. हमारे पास अब number of entries significantly reduce हो गई. अब हमने सिर्फ ये देखना है कि उसको मैप कैसे करना है. So जितना भी पेज टेबल आपका फिजिकल मेमोरी का साइज है, you will divide it to the page size and you will have some reasonable number of pages or the page frame numbers. Entries keep track of process and virtual page. अब आपको ये भी देखना है कि physical memory में you can have multiple processes. So which
पेज बिलोंग टू या विच पेज फ्रेम बिलोंग टू विच प्रोसेस, और उस पेज प्रोसेस का भी कौन सा वर्चुअल पेज है, ये हमने ट्रांसलेशन करनी है. सो एसोसिएटेड विद द पेज फ्रेम एंड देन दिस इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पेज फ्रेम. अब की दफा हम इधर से आ रहे हैं कि ये जो फिजिकल पेज फ्रेम है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसका ये कौन सा वर्चुअल पेज है. So we need to find the associative memory in terms of process number n and virtual page number p for each memory reference processes for n processes. So let us see how. We will search the page frame number on every memory reference. प्रॉब्लम ये है कि हर मेमोरी रेफरेंस में हमें ये काम करना पड़ेगा. ये जो रिवर्स कंप्यूटिंग है ये हमें हर मेमोरी में करनी पड़ेगी. सो हाउ कैन वी डू इट एफिशिएंटली? फर्स्ट ऑफ ऑल कीप हेल्दी यूज ऑफ द फ्रेम्स इन TLB. TLB की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इट इज इन द हार्डवेयर एंड ऑल सर्चेज इज आर डन इन पैरेलल. पैरेलल में सारी एंट्रीज को एक साथ वो सर्च कर सकता है. सो अगर आप TLB के अंदर ये एंट्रीज रखते हैं, पेज फ्रेम नंबर भी आपको पता होता है वहां पर और उसके ऊपर वर्चुअल पेज नंबर भी होता है. ओके, सो इफ अ मिस देन कॉज then you can use the associative search to find the virtual page for mapping. अब आपने उसके साथ एक सर्चिंग टेक्निक लगानी है जो कि आपका वर्चुअल पेज नंबर जो है वो सर्च करके देगा. सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज अ हैश टेबल. हैशिंग इज a technique which is a very efficient technique that we teach it in the data structure. So I will not be talking about the hashing technique, but I will just use it, or I'll ask you to please go through the hashing concept. जब आप data structures पढ़ेंगे वहाँ पे you will see कि आप hash से कैसे search कर सकते हैं. So virtual address you can use by creating a hash table. अब हर hash table में एक term होती है collision. जब collision occur होता है then you can just have, if 2 or more pages are mapped to a single hash location, then you can use a linked list. उसका एक solution होता है. So if the size of the hash table is equal to the size of the number of entries are equal to the number of entries of the page frames, तो फिर आपका जो correspondence होगा linked list का जो size होगा that will be 1:1. ओके, और अगर आप ये समझें कि एक ब्लैक बॉक्स है विच इज एन हैश, और ये हैश जो है वो आपके ट्रांसलेशन जो है, सर्चिंग जो है वो आपकी बहुत फास्ट करके दे रहा है पेज फ्रेम से वर्चुअल पेज में. और इस हैशिंग टेक्निक की जो प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे रिजॉल्व किया कि हैशिंग की एंट्रीज हमने उतनी की जितनी पेज फ्रेम की एंट्रीज है. तो ऐसी सूरत में जो हैशिंग की जो प्रॉब्लम है, अगर हम 1 by 1 रखते हैं ना, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि सर्चिंग और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है और जो ओवरहेड है सर्चिंग का वो मिनिमाइज हो जाता है. So the inverted page table are very common in 64-bit machines and they use all these techniques to optimize the searching process. अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहें तो दिस इज द ट्रेडिशनल वर्चुअल पेज, और वो आप देखेंगे ये 30 पेंटाबाइट्स का जो साइज है जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है उसको आपको मेंटेन करना मेमोरी के अंदर. सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ दिस इज द, अगर 1 GB की आपकी फिजिकल मेमोरी है देन यू हैव 2⁻18 और 4K बाइट पेज फ्रेम्स. अब तक आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जो मैं नंबर के साथ प्ले करता हूं, आपको पता है k के लिए 2⁻10, 4 के लिए 2⁻2, 18 के लिए कितने बनेंगी 2⁻3 प्लस 2⁻10. तो ये जनाब आपके पास जो एंट्री में 8, सॉरी दिस इज 18, सो इट्स 2⁻18 ऑलरेडी 2⁻18. सो ये आपके पास है आपकी 1 गीगाबाइट फिजिकल मेमोरी के पेज फ्रेम टेबल है बेसिकली. अब इस पेज फ्रेम टेबल के साइज का 1, मैंने कहा था अगर आप इसको 1:1 एंट्री रख लें तो आपकी सर्चिंग टेक्निक जो होगी बहुत फास्ट हो जाएगी. और ये जो आपकी चेनिंग बन रही है, जो हैशिंग की एक ड्रॉबैक है, उसको आप मिनिमाइज करके 1 सिंगल एंट्री पे भी आएंगे. और ये जो सिंगल एंट्री है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
ये हमारी भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि अब आप इसमें वर्चुअल पेज नंबर यहाँ से डालेंगे और आपको यहाँ से पेज फ्रेम मिल जाएगा, और यही हम कर सकते हैं क्योंकि हम आ रहे हैं फ्रॉम वर्चुअल एड्रेस स्पेस, और वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज द वर्चुअल पेज नंबर। ये हम इस टेबल में डालते हैं, इसकी मदद से हम इस एंट्री पे आते हैं, और ये एंट्री हमें वर्चुअल पेज से पेज फ्रेम प्रोवाइड कर देती है। So we have been rescued by the data structure technique called hashing, and with the help of hashing we can implement the inverted page tables. और ये inverted page tables are useful for the computers, for the machine where the address space is very very large, usually a 64-bit address space. Okay, so with this we have completed the topic जो कि वर्चुअल मेमोरी का था। ये भी वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड है, और दिस टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड नेक्स्ट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पेज फॉल्ट की। पेज फॉल्ट का क्या मतलब है कि द पेज इज नॉट इनटू द मेमोरी। इफ द पेज इज नॉट इनटू द मेमोरी मींस अ पेज फॉल्ट हैज अकर एंड न्यू पेज इज टू बी ब्रॉट, then you have to choose an existing page which has to be evicted from the memory and it has to go back to the disk. Which page to choose? That is the objective of this page replacement algorithm. We don't want to evict a page which is heavily in use. उसका नुकसान क्या है कि अगर आप ऐसे किसी पेज को evict कर देंगे, उसको मेमोरी से निकाल देंगे और हार्ड डिस्क में भेजेंगे, तो देयर कुड बी अ चांस कि द पेज कुड बी रेफरेंस्ड अगेन, और इफ द पेज कुड बी रेफरेंस्ड अगेन देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट पेज फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इफ द पेज हैज बीन रिटन then means कि it is dirty, it is modified, then you have to write back the page onto the disk. दोनों काम करने पड़ेंगे, डिस्क पे लेके भी जाना पड़ेगा क्योंकि पेज has been modified, और नया पेज भी जाना पड़ेगा। So if the page is not dirty, it is the same that the copy already there onto the disk, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, 50% of the task will be saved and you will not be required to write back the dirty page onto the desk. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये वही एक प्रॉब्लम है जो कि मुख्तलिफ एरियाज में कंप्यूटर साइंस में वो हम इनकाउंटर करते हैं। कहाँ पर? अगर हम बात करें कैशिंग की, वन और मोर कैश ब्लॉक, आपको पता है हम सीपीयू के अंदर हमने कैश की बात की थी और हमने कहा था कि मोर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड डेटा और द इंस्ट्रक्शंस वी कीप इट इनटू द कैश, इनटू द मेमोरी। तो इसके भी वही चीज़ है कि आपने वो पेजेस जो बहुत ज़्यादा आप जिसको रेफर कर रहे हैं उसको आप रेडी रेफरेंस के लिए अपने पास कैश में रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी एक स्टोर के अंदर वो आइटम, मेन आइटम जो है, मेन स्टोरेज जो है वो स्टोर के अंदर होती है, और आपका जो शॉपिंग मॉल है उसमें बहुत हैंडी वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी जगह पे रखी जाती हैं जहाँ से वो कन्वीनियंट भी आप उसको बार बार मोर फ्रीक्वेंट भी आप उसको रेफ़र करते हैं या डिमांड होती है उसकी, उसको आप इजी अप्रोच के अंदर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम कैश को यूज़ करते हैं, बिल्कुल द सेम कॉन्सेप्ट वी यूज इट इन दी पेजिंग। एक और जगह है वेयर वी वुड लाइक टू कीप दी वेब सर्वर्स के अंदर द पेजेस, web pages which are frequently demanded by the end users. If the pages are frequently demanded by the end user, then what we can do, we can just keep those pages into the cache, into the memory, so that कि हम उसको वहाँ से यूजर्स को प्रोवाइड कर सके। द ओनली डिफरेंस इज डैट कि जो वेब पेजेस होते हैं वो नॉर्मली डर्टी नहीं होते और उसकी क्लीन कॉपी आपके पास डिस्क के ऊपर होती है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज देयर कि इफ द मेमोरी इज फुल देन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि किस पेज को आपने मेमोरी से
निकालना है so that कि you can bring a new page into the memory of the computer to serve the user. So concept एक ही है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझें तो that it will be useful to understand the concept of caching and understand the concept of the web pages which are kept into the memory as a cache. So page replacement from algorithm almost दोनों जगह पर हम कहते हैं कि we can use the same technique. Okay, these are the page replacement algorithms. We have an optimal page replacement algorithm. Then not recently used page replacement algorithm, first in first out page replacement algorithm, second chance, clock page, least recently used page, working set page replacement and working set clock page replacement algorithm. हम ये सारे के सारे one by one algorithms हैं which are the best practices and discussed with their merits and demerits. We will talk about all these algorithms one by one. First of all, the optimal page replacement algorithm. Optimal page replacement algorithm is an ideal analogy. एक ख्वाब, something that is almost impossible to implement, but that is the original idea कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ऑप्टिमल कब हो सकता है. ऑप्टिमल उस वक्त हो सकता है कि वी कैन पिक अप ओनली दैट पेज विच इज नॉट रेफर्ड बैक अगेन इन फ्यूचर. हमें 100% हम वही पेजेस मेमोरी के अंदर प्रोवाइड करें जिन पेजेस की हमें जरूरत है. सो इसका मतलब है कि obviously मैंने आपको बताया this is next to impossible. So what we can do कि अगर हम ऐसा पेज जिसको के 8 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पहले रेफर बैक किया गया और एक को 6 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पहले रेफर बैक किया, इन दोनों में से हम उस पेज को निकालना पसंद करेंगे जिसको 8 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पहले रेफर बैक किया. ये एक बहुत बड़ी exaggerated फिगर है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमने हर वो पेज जिसकी जरूरत पेश आ सकती है शुड बी देयर इनटू द मेमोरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेज फॉल्ट टू 0. So it is not possible unless until we know the process behavior, and that can only be obtained if we run that process first onto the simulator, note down a sequence, and then that sequence is provided to the scheduler, to the operating system, to the memory manager कि ये sequence होगा, इस sequence में pages would be required. और अगर उस sequence में pages provide किए जाएंगे then there will be no page fault. So you can use as an idea to refer algorithm, but it is unrealizable. क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा चेंज कर देंगे तो इवन विद सिमुलेटर पे आपने एक सीक्वेंस निकाला है वो सीक्वेंस भी इनवैलिड हो जाएगा. ओके, तो ये हर प्रोसेस के भी आपको सीक्वेंस चाहिए होगा और हर डेटा सेट के लिए सीक्वेंस चाहिए होगा. दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि इट इज अनरियलाइजेबल. लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से किया सो डैट कि आपको पता चले कि जहां भी थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट आ सकती है किसी एल्गोरिदम में, वी विल लव टू गो फॉर दैट इन ऑर्डर टू हैव द हंट फॉर फाइंडिंग आउट द एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. ये एक एग्जांपल है दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम अनदर बुक. Suppose just to demonstrate you, we have got only 3 page frames that has been given to one particular process, and this is the sequence of the reference to the pages. अब अगर पहला पेज है 7 number, you will load it into the memory of the computer. Then the page number 0, you will load it here. Then the page number 1, you will load it here. Now you require the next page that you require, and the next page that you will require, you take a decision कि अब आपको यहाँ पर 7 को निकालना है. अब कैसे निकालना है ये हमें नहीं पता, हम 7 की जगह 2 ले आए. Next came 0, next comes 3. तो हमने क्या किया,
1 की जगह पर हम 3 को ले आए. नेक्स्ट इज 0, 0 इज ऑलरेडी देयर. नेक्स्ट इज 4, तो हमने 0 की जगह 4 को यहां पर लिया. नेक्स्ट इज 2, 2 is already there. Next is 3, 3 is already there. Next is 0, 4 की जगह पे 0. Next is 3 is already there. 2 is already there. Next 1, replace it with 3. Next 2, it's all there. 0 is already there. 1 already there. 7, replace it with 2. 0 is already there. 1 already there. So ये सीक्वेंस कहां से आएगा कि किस पेज को आपने निकालना है. एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशन येट देयर जो कि हमें मजबूर करती हैं कि पेज फॉल्ट क्योंकि लिमिटेशन की वजह से है, वो तो हमें करना ही करना है, क्या है हम स्वैपिंग कर रहे हों या हमने एटलीस्ट रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को मेमोरी में तो लाना है. लेकिन इसमें आप देखें, अगर हम देखते हैं तो ये 7 यहाँ से हमने आउट किया और इसकी जरूरत जो है ना वो यहाँ पे जाके पेश है. तो ये जो सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस से हमने पेजेस को निकालना है, ये बताने का मकसद ये है. इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द सीक्वेंस बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस एंड इट चेंजेस फ्रॉम द डेटा सेट टू डेटा सेट. इवन एक ही प्रोसेस का आप डेटा सेट चेंज कर दें तो आपको ये सीक्वेंस चेंज करना पड़ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम रियलिस्टिक एल्गोरिथम. दिस इज कॉल्ड NRU, नॉट रिसेंटली यूज्ड. ऑब्जेक्टिव वही है कि ऐसे पेज को यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस इट विच इज नॉट रिसेंटली यूज्ड. सो यू अप्लाई दी. अब हमें उनकी जरूरत पेश आएगी, वो जो बिट्स की हम बात करते थे, रेफरेंस बिट एंड मॉडिफाइड बिट, एंड मेंटेन द स्टेटस ऑफ दैट बिट that must be updated on every memory reference. In order to implement it into the hardware, yes, we can do it and implement it into the hardware, and if not in the hardware, then we will use the operating system. और operating system का मतलब है कि पेज फॉल्ट होगा और फिर operating system इसको implement करेगा. अब हम उस वाली टेक्निक को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जो हमने that we discussed it much more in detail in the previous lecture. Here we will just concentrate कि हम इस एल्गो को कैसे लेकर चलेंगे. If we can maintain 2 bits, one is called reference bit. This is the reference bit. If a page is not referenced, not modified, we call it as a class number 1, which is class 0. So we maintain 4 classes, 0, 1, 2, 3, and a page not referenced 0, not modified 0, then page not referenced but modified. This is something very interesting. कि ये कैसे हो सकता है पेज रेफर ही ना हुआ और वो मॉडिफाई हो गया. ये ऐसा है कि जो रेफरेंस बिट है उसको हम periodically रीसेट कर देते हैं. यानी कि अगर कुछ पीरियड तक वो पेज रेफर नहीं होता तो व्हाट वी कैन डू, वी रीसेट दिस R बिट टू 0 सो डैट कि आप उसकी एज निकाल लें, आपको पता चल जाए कि ये रेफर नहीं हुआ. अगर ये फर्ज किया कि करंट भी रेफर नहीं हो रहा, बहुत देर से रेफर नहीं हो रहा, तो आप उसको हम 0 करेंगे. इसके ऊपर वी टॉक अबाउट इट फर्दर. बट इफ वी कैन मेंटेन कि इफ अ पेज इज नॉट रेफरेंस और उसकी R बिट को रीसेट कर दे. मॉडिफाइड बिट को रीसेट नहीं कर सकते. वंस द पेज इज डर्टी, इट इज मॉडिफाइड, दैट स्टेज देयर. सो हम इसको क्लास नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि सेकंड क्लास होगी. नेक्स्ट इज पेज इज रेफरेंस एंड नॉट मॉडिफाइड, एंड फाइनल पेज रेफरेंस एंड पेज मॉडिफाइड. हमने इसको इधर से तरजीह क्यों दी? क्लास नंबर 2 को हमने नीचे क्यों रखा विद रेफरेंस टू क्लास नंबर 1? हालांकि इफ अ पेज इज नॉट रेफरेंस बट मॉडिफाइड, इसमें तो हमें पेज को विल रिक्वायर मोर टाइम बिकॉज वी हैव टू टेक बैक द पेज ऑन टू द डिस्क. इसकी जो हिडन मोटिव्स हैं वो ये है कि जो मॉडिफाइड पेज को तो आप डीएमए करके और किसी और पार्ट के हवाले करके यू कैन राइट बैक ऑन टू द डिस्क. बट हियर इफ द पेज इज रेफरेंस, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रिक्वायर्ड अगेन. तो हम रेफरेंस पेज को as long as possible we would like to keep it into the memory. So what is the solution net?
whenever there is a page fault, जब पेज फॉल्ट अकर होगा, then the system will try to find out, will try to pick up the lowest number of non-empty class. पहले ये क्लास नंबर 0 से फाइंड आउट करेगा. If there is a page that belongs to class number 0, ये उस पेज को evict करेगा. अगर क्लास 0 से नहीं मिलेगा, it will try to find out a page from class number 1 और क्लास नंबर 2, और अगर 0, 1, 2, 3 से नहीं मिलेगा तो ये पिकअप करेगा पेज फ्रॉम दी क्लास नंबर 4, दैट इज पेज विच इज रेफरेंट एंड विच इज मॉडिफाइड. सो इट पिक द लोएस्ट नंबर्ड नॉन एम्प्टी क्लास, इनमें से नॉन एम्प्टी data set which is non-empty, means there should exist any पेज जिसको हम निकाल सकें. लेकिन अगर वो नहीं होगा, इस क्लास में ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी पेज यू हैव नॉट मेंटेनिंग इट इनटू द लिस्ट हियर, तो इसका मतलब है कि ये क्लास आप यूज नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट क्लास से पिक करना पड़ेगा. ठीक है. और अल्टीमेटली अगर किसी भी क्लास में नहीं है तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, एंड देन यू विल रिक्वायर टू टेक द डिफिकल्ट डिसीजन दैट द पेज दैट हैज बीन रेफरेंस, दैट हैज बीन मॉडिफाइड, बट यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस, सो यू नीड टू evict that particular page. So this is called not recently used technique, or not recently used algorithm. Next is a very common and very simple algorithm which is first in first out. We are making an assumption real life के अंदर भी कि जो part है, अगर कोई the page that has been brought first will be executed, then the page number 2 will be brought into the memory, that will be executed, page number 3. So there is a chance कि आप एक evolution के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n pages तक first in first out form के अंदर चले जाएंगे, और the page will not be referred back. और रियल लाइफ के अंदर भी अगर आपको रेफर बैक नहीं करना, तो वी कैन मेक एन अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट दिस सिंपलेस्ट टेक्निक, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल पेजेस इन द मेमोरी. देन इट कीप द लिस्ट्स ऑर्डर्ड बाय द टाइम लेटेस्ट टू अराइव एट द एंड ऑफ द लिस्ट. यानी कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में जो आएगा वो उस क्यू के अंदर लास्ट में फिट इन हो जाएगा, उस लिंक लिस्ट में यू विल इंसर्ट इट इनटू द लास्ट पोजीशन. ओके, सो दैट के whenever there is a page fault, it will pick up the page that is at the front, जो क्यू के फ्रंट में है, वो सबसे पहले आया था, उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, आप उसको निकाल दें. लेकिन the oldest might be the page that is heavily being used. अब इस टेक्निक में हमने सिंपलेस्ट टेक्निक रखी है, बट देयर इज अ चांस इन ए रियल टाइम के जो पेज फ्रंट पे है, देयर इज अ चांस कि वही पेज है विच इज वेरी हैवीली बीइंग यूज्ड. लेकिन इस एल्गोरिदम के अंदर हम उसको कोई वेटेज नहीं दे रहे. इफ वी आर नॉट गिविंग एनी वेटेज टू दैट पेज विच इज हैवीली इन यूज, सो फिर हमारा ये एल्गोरिदम जो होगा बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसमें मैं एक दो और भी कॉन्सेप्ट्स को जिक्र करूंगा. सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस एग्जाम्पल फ्रॉम सम अदर बुक. सो वुड लाइक टू सॉल्व इट. सपोज दीज आर दी सीक्वेंस ऑफ पेजेस जो कि आपके एड्रेस स्पेस रेफर कर रहा है. पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ये वो सीक्वेंस है in which the pages are being referred. Suppose to demonstrate कि हमारी जो physical memory है, जो physical memory only comprising 3 page frames, 1, 2, 3. So let us see कि how many page fault will occur. First of all हम assume करते हैं कि मेमोरी में कोई भी पेज नहीं है, तो यू आर गोइंग टू रेफर टू द फर्स्ट पेज, सो यू विल पेज फॉल्ट विल बी देयर एंड फर्स्ट पेज इज ब्रॉड. ये भी एक टेक्निक है जिसको हम डिमांड पेज टेक्निक कहते हैं, और वी विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर. Then page number 2 is referred, which is not there, page fault will occur. Page number 3 is referred, which is not there, page fault will occur. अब पेज नंबर 4 आया. हमारे क्यू में जो सबसे पहले पेज आया था वो 1 था, 1 को हम निकाल देंगे और 1 की जगह पेज नंबर 4 जो है विल बी देयर. देन पेज नंबर 1 जिसे निकाला था अगेन रेफर्ड बैक, दोबारा रेफर हो गया. अनफॉर्चुनेटली हमने निकाला था अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम. अब हम क्या करेंगे, 2 को निकाल देंगे और जनाब 2 की जगह पर हम इसको 1 को लोड करेंगे.
2 को निकाला था, फौरन ही 2 की जरूरत पेश आ गई, आप 3 को निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लिंक लिस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो अब 1 भी जा चुका है, 2 भी जा चुका है, तो और इसमें कौन से है 3 4 1, 3 इज द ओल्डेस्ट वन, 3 को निकालेंगे उसकी जगह 2 आ जाएगा। अब आपके पास ओल्डेस्ट है 4, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2। नेक्स्ट यू रिक्वायर पेज नंबर 5, this you bring page number 5 into the memory of the computer. Now you have a page number 5, 1 and 2. Next is page number 2, it is already there in the memory. Next is page number 2, it is already there into the memory. Next you require page number 3. अब ये लेटेस्ट आया था, 1 और 2 पुराने थे, so what it will do, सबसे पुराना 1 था, तो you will just remove 1 and bring the 3 there. नेक्स्ट यू रिक्वायर पेज नंबर 4, अब सबसे ओल्डेस्ट जो है वो पेज नंबर 2 है, क्योंकि ये था 1 2 5 था, तो जब 3 आ गया तो ये फिर बन गया 2 5 3। अब नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड पेज नंबर 4, सो 2 विल गो एंड दिस पेज नंबर 5 इज ऑलरेडी देयर। तो पेज फॉल्ट कितने करूंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट करूंगा। लेट अस सी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेज फ्रेम्स अगर हम बढ़ा दें तो क्या पेज फॉल्ट्स कम होंगे? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। हम यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ ऑलरेडी कि कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। दिस कुड बी पॉसिबल, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, एंड यही एनॉमली है कि मोर फ्रेम्स एंड मोर पेज फॉल्ट। अब इसी को आप दोबारा रन करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके, जैसे मैंने ऊपर वाला रन करके दिखाया कि आपको पहले पेज नंबर 1 चाहिए, दैट यू विल लोड page number 2, page number 3, page number 4. Then you require page number 1, that is already there. Page number 2, that is already there. Until you require page number 5. जब 5 आएगा तो आप क्या करेंगे, the oldest page कौन सा है, ये 1 है, आप 5 को लोड करेंगे, पेज फॉल्ट करोगा। बस इसी सीक्वेंस से आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करें एंड यू विल सी कि पेज फॉल्ट कहाँ करो रहे हैं। यहाँ पे हम वो पेज फॉल्ट की फॉर्म में इसको रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। So once the page fault will occur, you can count down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 page fault. और ये इस किस्म की एक एग्जाम्पल है जो कि आप नॉर्मली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस किस्म की एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन हिंट कि आप ऐसी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड के डेमोस्ट्रेट कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। लिहाजा अपने क्विज़ेस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, पेपर्स के लिए जो इस किस्म के न्यूमेरिकल्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे हमें ये असेस करते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप तभी इन प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस एल्गो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट्स एन ओवरहेड। आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, हर दफा आपको क्यू को अपडेट करना पड़ेगा। जब भी किसी पेज की जरूरत पड़ेगी, उस पेज को, क्यू को मेंटेन करने के लिए उसको आपको लिंक लिस्ट के साथ आपको क्यू को मेंटेन करना है। ठीक है, इस लिस्ट को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मैं वापस जाना चाहूंगा। एक चीज थोड़ी सी मैं इधर मिस कर रहा हूं। यहाँ पे हमने इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा कि पेज जो है वो कोई रेफर तो नहीं हो रहा। अगर हम इस पेज में थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए और ये देखें कि इफ द पेज इज बीइंग रेफर्ड, तो फिर हम उसको एक मौका और दें और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी या नहीं। और ये है हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम, सेकंड चांस। सेकंड चांस एल्गोरिदम ये है कि आप मेंटेन करें एक लिंक लिस्ट, A B C D E F G H, these are the pages, okay, these are the pages basically that is a queue जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से आप मेंटेन कर रहे हैं। This is the page that has been loaded first and this is the recent last page that has been implemented. तो आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू जो है वो ये बनी हुई है। Now pages sorted in first out order by their arrival time, उसके अराइवल टाइम के हिसाब से आप उसको अरेंज कर लीजिए। एग्जामिन द आर बिट, ये हमने चेंज किया
कि अब की दफा पेज निकालने से पहले हम जरा उसकी रेफरेंस बिट को देखेंगे, क्या वो पेज रेफर तो नहीं हुआ। इफ द आर बिट ऑफ द ओल्डेस्ट पेज इज 0, अब हमने फर्ज किया पेज फॉल्ट अकर हुआ और वी नीड टू इंसर्ट अनदर पेज। फर्ज किया हम यही एज्यूम करते हैं कि यहां तक हमारे पास था और अब हमने एच वाला जो पेज है वो हमने उसको लेकर आना है, ठीक है। या हमारे पास एक पेज है और नेक्स्ट पेज जो है ना, सपोज हमारे पास EFGH, सपोज हमने पेज नंबर K लेकर आना है। हम क्या करेंगे, आइडिया भी तो हमें A को देखना है क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट पेज, सबसे पहले ये आया था। क्या हम इस पेज को निकाल दें? बट इफ वी एग्जामिन द आर बिट, इफ द आर बिट इज इक्वल टू 0, आप इस पेज को निकाल दें और K नंबर पेज को यहां पर इंसर्ट कर दें। बट इफ दिस आर बिट इज इक्वल टू 1, हम कहते हैं अगर आर बिट ये 1 है तो इस पेज को यहां से निकालकर टेल में डाल दें। सॉरी, हमने देखा ना, इसको यहां पे था ना, इसको हमने निकाल के हमने टेल पे इंसर्ट कर दिया। गिव इट अ सेकंड चांस और इसकी आर बिट को कर दें 0, क्योंकि यू हैव गिवन इट अ सेकंड चांस। और ये 0 क्यों किया अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर आप फाइंड आउट करें वो पेज जिसकी आर बिट जो है वो 0 है, और जो भी आपको ऐसा इसमें सीक्वेंस में पेज मिल जाता है, और इस तरह करते जाएं। फर्स्ट किया इसकी आर बिट 1 है, ये इसके पीछे आ जाएगा, इसकी आर बिट 1 है, ये इसके पीछे आ जाएगा। फ्रंट से निकालते जाएं, टाइम टैग उसका अपडेट करें और उसको दोबारा जो है ना क्यू के अंदर इंसर्ट करते चले जाएं until you find a page with r is equal to 0। अब वर्स्ट सिनेरियो क्या है, आपको कोई भी पेज नहीं मिलता r is equal to 0, तो फिर कुर्रा किसके नाम निकलेगा? कुर्रा दोबारा ए के नाम निकल जाएगा। वाई? कि एट द टाइम जब हमने इसको फ्रंट से निकाल के रेयर में इंसर्ट किया था उस वक्त हमने आर इसको 0 दे दिया था। हमने इसको एक सेकंड चांस दिया था सर्वाइव करने के लिए, एंड वी एक्सपेक्टेड कि वी कुड फाइंड आउट अ पेज विद एन आर बिट इज इक्वल टू 0, देन दिस पेज कुड बी गिवन अ चांस टू स्टे इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम है। लेकिन अगर सारे के सारे पेज जो हैं वो रेफरेंस हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि फिर दिस इज द ओल्डेस्ट पेज, दिस पेज हैज टू गो आउट। सो इफ चेंज वैल्यू ऑफ आर बिट फ्रीक्वेंटली, so there might still be evicted at a heavily used page। लेकिन साथ में ये भी बात है कि ये relative नहीं है। हो सकता है कि ये वो पेज हो जिसकी हमने आर बिट तो 0 कर दी है, लेकिन ये इन सारे पेजेस से सबसे ज्यादा रेफर बैक हो रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें ये रिकॉर्ड नहीं रखा कि ये किस किस टाइम पर रेफर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर पेजेस, ए की पोजीशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में किसी और अगले एल्गोरिथम में ट्राई आउट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एल्गो है हमारे पास, यही एल्गो है। इस एल्गो में अगर हम इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ लॉन्ग लिंक लिस्ट, जिसमें ओवरहेड क्या है कि आपको फ्रंट से पेज को निकालना पड़ता है और उसको जाके बैक पे रेयर पे इंसर्ट करना पड़ता है। आर बिट को हम 0 करते हैं, फ्रंट से पेज को रिमूव करते हैं एंड इंसर्ट इट एट द पोजीशन एट द रेयर। अब फ्रंट से पेज को रिमूव करके रेयर वाली पोजीशन पे जाके इंसर्ट करना इज ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब। हम यही कॉन्सेप्ट एक और तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट्स दैट, कि वी मेंटेन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट मेंटेन करते जाइए और एक आप हेड बनाए, सपोज दिस हेड इज इनिशियली पॉइंटिंग आउट टू ए, जैसे वहां पे पॉइंट आउट कर रहा था। व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, you have to take the decision। ये सारे के सारे algorithm, you will refer all these algorithm when the page fault will occur। तभी तो आपको पेज रिप्लेसमेंट के algorithm की जरूरत पेश आएगी। So when the page fault occur, then you will set के क्लॉक एल्गोरिदम में जो हेड है, जो कि उसका आर्म है, जो इंडिकेट कर रहा है ए को, इसको चेक करेगा। इफ द आर बिट इज इक्वल टू 1, सेट इट टू 0, आर्म जो है वो चला जाएगा बी पे। सपोज इसकी भी आर बिट जो है वो 1 थी, उसको अपडेट करेगा 0 पे और आ जाएगा सी के ऊपर। और सपोज
if this r bit of c is equal to 0, it will evict this page number page 3 या पेज c जो है, और इसकी जगह पे नया पेज इंसर्ट हो जाएगा. ओके, सो हमने देखा कि वो जो लिंक लिस्ट है उसमें हमें फ्रंट से पेज को रिमूव करके रेयर पे नहीं जाना पड़ रहा, सिर्फ आर बिट को रीसेट करते जा रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट एंट्री के ऊपर हम जाते जाएंगे until we find an entry. और ऑब्वियसली वो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी, सपोज ये सारे के सारे रेफर हो रहे हैं, तो इन दैट केस आपका आर्म चलता चलता वापस ए पर आ जाएगा. अब क्योंकि जब आपने पहली दफा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ द पेज फॉल्ट आर वाज 1, तो आपने इसको सेकंड चांस दिया था और बाद में आपने क्या किया कि इसको आर बिट 0 करके आप बी पे चले गए थे. और अगर यहाँ पे आपको कोई पेज नहीं मिलेगा तो इसकी आपने आर बिट तो 0 की हुई है, तो एल्गोरिदम विल सर्टेनली टर्मिनेट. ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट, अगर ये वाली चीज ना होती, इस आर बिट को 0 ना करते और ये सारे के सारे 1 होते, तो फिर तो ये लूप के अंदर ताहयात चलता रहता ये सर्कल जो है, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता कि वो कौन सा पेज है विच हैज गॉट आर बिट इज इक्वल टू 0. ठीक, सो इसका मतलब है कि दिस एल्गो विल टर्मिनेट, सर्टेनली टर्मिनेट. अब देखते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लॉक. डजंट यूज द एज एज ए रीजन टू एविक्ट. ये वही वाली बात है, क्योंकि बेसिकली वी आर जस्ट स्टडिंग द सेम एल्गोरिदम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिर्फ हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज की है. तो वो जो मैंने ड्रॉबैक बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कि इफ द पेज इज हैवीली बीइंग यूज्ड, हमें उसकी एज के बारे में हमें नहीं पता और हम उसकी बेस पे डिसीजन नहीं लेते, तो वी कुड मेक अ मिस्टेक एंड रिमूव अ पेज विच इज हैवीली बीइंग यूज्ड. फॉर एग्जांपल, आप एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने शॉपिंग मॉल में, और आप कहते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है उसको मुझे निकाल देना चाहिए, उसकी जगह नई प्रोडक्ट रखनी है. लेकिन आपने ओल्डेस्ट प्रोडक्ट वो निकालनी है विच इज अनयूज्ड, अनरेफरेंस्ड. अनरेफरेंस का मतलब है अनडिमांडेड. और सबसे पहले आपकी फर्ज किया प्रोडक्ट वाज द फ्लोर, आटा था आपका, और बट इट हैज गॉट अ डिमांड, इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड. लेकिन अगर आप ये नहीं देखेंगे कि ये दिस इज एन हेवी डिमांडेड आइटम, तो देयर इज अ चांस कि आप उस फ्लोर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक नई प्रोडक्ट वहां पर ले आएंगे, विच इज अ बैड डिसीजन. तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो आपको इसका मेरिट और डीमेरिट आसानी से समझा सकता है. इट अ फास्टर, क्योंकि आपकी इंप्लीमेंटेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट है, वो मैं आपको बता दिया एडवांटेज. And doesn't distinguish between how long pages have been referenced. ये बात मैंने अभी आपको मिसाल के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन कर दी है. So this is basically the demerit of this algorithm. Next is least recently used. Before I go into the concept of the least recently used, I will just explain it. Okay, you want to take a page which is least recently used. You expect that all the pages are being referenced by the program in the control of the execution. Thread of execution में आप pages को refer कर रहे हैं, but you are trying to find out a page which is least comparatively, which is least in use. और इसको हम देखते हैं कि सपोज ये एग्जाम्पल है इन विच वी हैव गॉट 3 पेज फ्रेम्स और दिस इज द सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लीस्ट रिसेंटली पेज कौन सा है. फर्स्ट पेज फॉर अकर 7 आ जाएगा, देन 0 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन कि विच इज द लीस्ट वन. अब देखिए, ये प्रीवियसली यूज हुआ था, ये उससे पहले यूज हुआ था. अब इन तीनों में जो लीस्ट है वो थर्ड एंट्री है, दैट वाज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. क्योंकि ये फर्ज किया क्लॉक टिक x-3 पे यूज हुआ या t-3 पे यूज हुआ, दिस इज t-2, दिस इज t-1. तो इसमें जो सबसे पुराना जो है लीस्ट है वो 7 है. सो यू विल रिमूव पेज नंबर 7 एंड इंसर्ट इट 2. नेक्स्ट यू वांट पेज नंबर 0 विच इज ऑलरेडी देयर. नेक्स्ट यू वांट पेज नंबर 3. अब इसमें लीस्ट कौन सा है? प्रीवियस टिक में रेफर हुआ था 0, उससे प्रीवियस टिक में रेफर हुआ था 2, तो लीस्ट वाज 1.
ये 1 जो है ना इसको निकालेंगे और इसकी जगह पे आप 3 को अकोमोडेट करेंगे। नेक्स्ट इज 0, हैवीली यूज्ड है, आप देखें इट इज देयर, बार बार यूज हो रहा है। नेक्स्ट कम्स 4, अब 4 जो है वो लीस्ट उसके लिए कौन सा है, 0 इज द प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस 0 obviously is there, next previous 2, क्योंकि आप इस 0 को नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये इसकी प्रायोरिटी है, this is the least recent you use, so out of 0 and 3 you have to take a decision कि ये दोनों तो आप नहीं निकालेंगे, 0 भी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बार बार रेफर हो रहा है, तो फिर लीस्ट हो गया 2 की जगह पे आप 4 ले आएंगे। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स कि लीस्ट रिसेंटली यूज जो है, ऑब्जेक्टिव इज यू आर सर्चिंग अ पेज विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। लेट अस सी कि इस कॉन्सेप्ट को हम डेफिनेशंस के साथ और इंप्लीमेंटेशन के साथ हम इसकी बात करें। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। लेट अस सी, पेज दैट हैव बीन यूज्ड रिसेंटली विल बी रेफर्ड अगेन, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। हम एक हाइपोथेसिस की बात करते हैं। दिस इज एन हाइपोथेसिस दैट इफ अ पेज इज बीइंग रेफरेंस्ड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट पेज विल बी रेफर्ड अगेन। अगर एक पेज बार बार रेफर हो रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल 0 की देखी थी, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेफर्ड अगेन। हाइपोथेसिस का कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। वो क्या है? If the page has not been referred for certain time, then there is a probability that it will not be referenced for immediately again. ठीक है, उसका कन्वर्स भी ट्रू है। और इस वाले हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए हमने ये एल्गो बनाया। So what is the algorithm then? कि at the time of the page fault, our objective is to remove the page unused for the longest time. And this strategy is called least recently used. आपने देखा कि 0 दोबारा आ गया था उस पिछली एग्जाम्पल में, my explanations के अंदर that I have just given in the previous example, हमने 0 को टच नहीं किया क्योंकि 0 was just referred into the previous instruction. उससे पहले 3 रेफर हुआ था, उसके बाद फिर 0 रेफर हुआ था, तो हमने 0 को नहीं छेड़ा until we reached to the third that was 2. तो हमने 2 की जगह 4 को लेकर आए थे। तो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे है करनी है? फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन विच इज यूजुअली अ थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन, और ये मैं आपको अभी बता दूं कि इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड, लेकिन थ्योरेटिकली हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे हाउ इट कुड बी इंप्लीमेंटेड। यू कैन मेंटेन अ लिंक लिस्ट। When I say you can maintain a linked list, so obviously most probably in the software, hardware में इसको maintain करना is very expensive and time consuming. Whenever the page is referred, sorry ये पहले वाले से different है। पहले वाले से कैसा different है कि whenever the page is referred, it is removed and inserted in the at the front. उसमें क्या कर रहे थे? फ्रंट से निकाल के रेयर पे भी जा रहे थे। फर्क ये है कि whenever the page is referred, कोई भी पेज जो रेफर होगा उसको वहां के उस पोजीशन से निकालें, फ्रंट पे ले जाएं। जो पेज रेफर होगा उसको फ्रंट, जब रेफर होगा वहां से उस पोजीशन से निकाल के फ्रंट पे ले जाएं, उस पोजीशन से निकाल के फ्रंट पे ले जाएं। इफ इट इज ऑलरेडी एट फ्रंट, लीव इट देयर। सो एट एनी टाइम जो पेज रेयर पे होगा, ऑब्वियसली वो पेज होगा जो रिलेटिवली लीस्ट रेफर हो रहा होगा। आप समझ में आ गया? So you have to maintain this linked list. The problem is that it is very expensive to implement in the hardware as well as in the software. Software में तो एक बहुत बजाते खुद it's a very complicated algorithm and you are required to continuously moving a page from that particular position of the linked list into the front position. और जब आपको रिमूवल की बारी आएगी उसमें आपको रेयर से आपको पेज रिमूव करना होगा। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के ऊपर आपको ये वाला एल्गोरिदम भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इफ इट इज इन दी सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट क्योंकि इट रिक्वायर्स क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस टू एग्जीक्यूट बाय इटसेल्फ दिस एल्गोरिदम।
और इसका हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो you can could associate a counter with each page and examine them, but let us see. ये जो है ना, इसको अभी आप छोड़ दें. ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना, ये मेरा अगले जब नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं तो वी विल सी दैट आल्सो. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड इंप्लीमेंटेशन. वो जो काउंटर की बात थी वो इसके साथ है भाई. Use a special 64-bit hardware counter with each page, and page table entry should also have the capacity to save that particular counter. बात समझ में आई कि हम इसकी इंप्लीमेंट्री ऐसे कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग द पेजेस हम एक काउंटर डिफाइन करेंगे. एवरी टाइम द पेज इज रेफर्ड, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीमेंट द नंबर इन द काउंटर. अब वो क्योंकि हार्डवेयर में काउंटर है तो उसका हर दफा रेफर होता जाएगा और वो जनाब इंक्रीमेंट होगा, वेरी क्विकली इंक्रीमेंट हो जाएगा. और ये काउंटर क्योंकि पेज टेबल के साथ एसोसिएटेड है, देन यू हैव टू मेक अ प्रोविजन इन द पेज टेबल टू अकोमोडेट दिस 64-बिट काउंटर जो पेज टेबल एंट्री के अंदर होगा. क्योंकि ये जो काउंटर है आपने यूज करना है हर पेज के साथ. सो सपोज एक पेज रेफर हो रहा है, उसकी हर इंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि उसके काउंटर को इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं. ठीक है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा. उसकी वैल्यू उठाएंगे वहां से और उसकी वैल्यू को ले जाकर सिंपली कॉपी कर देंगे पेज टेबल एंट्री के अंदर. अगर आप पेज टेबल एंट्रीज में इंक्रीमेंट करना है तो पहले आप पेज टेबल एंट्री को रेफर करेंगे, वहां पे उसको इंक्रीमेंट करेंगे, फिर सेव करेंगे. 3 इंस्ट्रक्शंस चाहिए. लेकिन इफ इट इज इन द हार्डवेयर, यू जस्ट इंक्रीमेंट दैट, copy that data into that particular entry. That is much faster as compared to maintaining the counter into the page table के अंदर अगर counter maintain कर रहे हैं. Function क्या है अब इसका? How it will work? On each memory reference, the counter is incremented by 1 and current value is copied back into the page table, जो मैंने आपको explain किया. When a page fault occurs, examine the counters of each and every page and find out the counter which has the lowest value. अब आपने प्रॉब्लम एक सॉल्व कर दिया कि अगर कोई हैवी भी यूज पेज है तो उसके काउंटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. ये वो प्रॉब्लम थी जो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ऐसी कोई चीज मेंटेन नहीं कर रहे थे. सिर्फ रेफरेंस बिट को हम देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि कितनी दफा रेफर हुआ. अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रेफरेंस बिट को काउंट कर रहे हैं. और वो काउंटर हमें बता रहा है कि पेज ए, बी एंड सी, अगर ए का काउंटर इज 500, बी का काउंटर इज 400, सी का काउंटर इज 200, तो ऑब्वियसली सी इज अ पेज विच हैज द लीस्ट काउंट वैल्यू. इट इज refer 200 times but relatively much less than A and B, तो आप C को रिमूव करेंगे. ये इसका ऑब्जेक्टिव है. प्रॉब्लम क्या है? Associate counter with each page and examining them is expensive. बात यह है कि हर पेज के लिए एक काउंटर आपको मेंटेन करना और फिर आपको पेज फॉल्ट के टाइम पर वो सारे पेज टेबल के हर एंट्री के काउंटर की वैल्यू को सर्च करना इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव किस टर्म में? पैसे नहीं खर्च हो रहे. क्या चीज खर्च हो रही है? टाइम. एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम. यू आर रेफरिंग दैट काउंटर एंड गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी counter of each and every page. So that is really a time consuming. और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव है भाई. इससे भी फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो ये क्या है, वो जो पिछली स्लाइड में जो एक्सपेंसिव का वर्ड था ना, अगर एग्जामिन देम इज एक्सपेंसिव, बस ये वाली स्लाइड में ये मिस्टेक है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि एसोसिएट काउंटर विद ईच पेज, दैट वाज द प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था लिंक लिस्ट का सोल्यूशन. हमने कहा था कि इसमें इंप्रूवमेंट आप ऐसे करें कि काउंटर बना लें, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने वो काउंटर बनाया और हमने उसकी काउंटर की इंप्लीमेंटेशन की. और ये जो प्रॉब्लम है कि इट इज एक्सपेंसिव, इट इज रिलेटेड टू दिस वन. ओके, अब इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट क्या की जाए? फर्दर इंप्रूवमेंट जो है वो ये है, विच इज कॉल्ड द सेकंड इंप्लीमेंटेशन,
that keep n by n array, n bit by n bit की आप array बनाएं for n pages in the hardware. Suppose there are 64 pages, तो अब आप एक 64 बिट बाय 64 बिट की मैट्रिक्स एक बनाएंगे. अब एक काउंटर नहीं है बल्कि n बाय n, और इसको आप बिट बाय बिट करके कर सकते हैं. अपॉन रेफरेंसिंग एनी kth, अब आपने फर्ज किया 64 में पेज नंबर 32 को रेफर किया. व्हाट यू शुड डू कि रो नंबर 32 की तमाम एंट्रीज को 1 कर दें और कॉलम नंबर 32 की तमाम एंट्रीज को 0 कर दें. वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम कि आपकी जो मैट्रिक्स है, अब इसमें जो पेज भी रेफर होगा उस पेज की कॉरस्पॉन्डिंग रो को 1 कर दें, कॉलम को 0 कर दें. दैट विल गिव यू a very interesting value. Or when a page fault will occur, so what you will do, the row with the smallest binary value correspond to the LRU and evict that page. अब वो जो सर्चिंग थी ना, सारे पेज टेबल में जो हमें सर्चिंग करनी पड़ रही थी, हमारी जान जो है वो सारे पेज टेबल को सर्च करने से हमारी जान छूट गई. एंड वी हैव सेव्ड लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड नॉट रिलेटिवली एक्सपेंसिव. जो मैंने कटिंग की है इसको खत्म कर दीजिए क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक इसकी कटिंग कर दी थी ये वाली. दिस इज ओके क्योंकि दिस इज रिलेटिवली नॉट रिलेटिवली एक्सपेंसिव. किससे? वो जो काउंटर था, काउंटर क्यों एक्सपेंसिव था? क्योंकि उस काउंटर को सेव करते थे पेज टेबल में. अगर फर्ज किया 64 पेज टेबल एंट्रीज हैं तो पेज फॉल्ट के बाद आपको 64 एंट्रीज को 1 बाय 1 सर्च करना है और लोएस्ट एंट्री को निकालना है. यहां पर आपने n बाय n मैट्रिक्स की वन टाइम कॉस्ट बियर कर दी और ये वो कॉस्ट है जो कि फाइनेंशियल कॉस्ट है. टाइम के हिसाब से दिस इज वेरी फास्ट क्योंकि दिस इज n बाय n बिट मैट्रिक्स. इम्प्लीमेंटेशन भी है, इट्स वेरी सिंपल कि अगर kth रो जो है उसको आप रेफर करेंगे तो kth रो की तमाम एंट्रीज को 1 करना है. 1 एंड किसी एंट्रीज को सारी बिट्स को 1 करना इज वेरी फास्ट इन द हार्डवेयर. इसी तरह सारी बिट की एंट्रीज को 0 करना इन द हार्डवेयर इज वेरी फास्ट. that you can implement it very fast. फिर finding out the smallest value, once again it is in the hardware. Finding out the smallest value is again very fast. So you can just do that and you can just implement it. तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं अपनी आसानी के लिए. अब मैं 64 by 64 की अगर मैट्रिक्स बनाऊं then I need 4, 5, 6 slides. तो just to demonstrate हम कहते हैं कि 4 by 4 bit की मैट्रिक्स है. This 4 by 4 bit matrix contains page 4 pages है और इसकी n by n 4 by 4 matrix है. This is the sequence of reference of the page number 0, 1, 2, 3. This is the sequence. First of all, you have referred page number 0. You will convert all the entries 1. All the entries of page number 0 are converted to 1. Row of the 0 are converted to 1, then row of the 0 are converted to 0. इसको 0 किया, इन सारों को 1 किया. नेक्स्ट 1. अब 1 की तमाम एंट्रीज को 1 किया और 1 की तमाम एंट्रीज को 0 कर दिया. नेक्स्ट 2. All entries of 2 are converted to 1 and all entries of column number 2 are converted to 0. Next 3. All entries of 3 are converted to 1. All entries of column number 3 are converted to 0. Next 2. अब आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं. Next 2. All entries of 0, 1, 2 are converted to 1 and this is converted to. So at any stage, इसी तरीके से आप इसको रन करके देखेंगे, इधर से रन करवेंगे, रन करवेंगे, रन करवेंगे. Suppose this is the situation जहां पे हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा पेज है जिसको हमने निकालना है. Suppose अब आपको एक पेज को एविक्ट करना है तो पेज फॉल्ट अकर हुआ. ये पेज तो कौन से हैं? फिजिकल मेमोरी के पेजेस हैं. हमने फिजिकल मेमोरी को यहां पर कंसीडर किया है. अगर यहां पर पेज नंबर आ जाता है 5,
ये पेज कहां से आएगा 5, ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस से आएगा। अब हमने इसकी जगह पर ये पेज लेकर आना है, तो व्हाट वी विल डू कि किस पेज को निकाला जाए, द एंट्री दैट कंटेन्स द लोएस्ट वैल्यू, ये वाला पेज है, और ये पेज कौन सा है, पेज नंबर 1 है। आप पेज नंबर 1 को निकाल देंगे और इसकी जगह पर आप पेज नंबर 5 लोड कर देंगे, ठीक है। अब पेज टेबल के अंदर आपका पेज नंबर 5 इज एट पेज नंबर 1। सो इस तरीके से यू कैन मेंटेन कि आपने कौन से पेज को आपने इविक्ट करना है। इसकी इंप्लीमेंटेशन है लीस्ट रिसेंटली यूज की जो इंप्लीमेंटेशन है कैन ऑल्सो बी डन इन द सॉफ्टवेयर। इफ दिस इंप्लीमेंटेशन इज डन इन द सॉफ्टवेयर तो हम इसको लीस्ट रिसेंटली यूज को कहते हैं नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और ये नॉट फ्रीक्वेंटली यूज कैसे है, जब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो सर्टेनली मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको इसी एल्गोरिथम को लीस्ट रिसेंटली यूज को एट द टाइम ऑफ द इंप्लीमेंटेशन हम कहते हैं नॉट फ्रीक्वेंटली यूज। और हम क्योंकि रिकॉर्ड रख रहे हैं नॉट फ्रीक्वेंटली यूज का, लीस्ट का नहीं रख रहे। लीस्ट का तो हमने वो पहले एक तरीकाकार देखा, दैट इज इंप्लीमेंटेड इनटू द हार्डवेयर। सो इट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड algorithm in software is called not frequently used algorithm, ठीक है। और है algo वही, लेकिन आपके implement करने का अंदाज है क्योंकि you are implementing it into the software. So it requires quite a bit detailed explanation. So I think I should stop here and I will continue from this point from the maybe certainly in the नेक्स्ट लेक्चर। हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और यहीं से इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो वंस अगेन स्टूडेंट, द सेम ओल्ड एडवाइस जो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, रीड दी बुक, उसमें आपको थोड़ी सी कुछ और एडिशनल एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। देन ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। Once you solve the example given at the end of the chapter, these are the numerical examples, or you may find some good examples in the reference book जो कि मैंने आपको कोड की है, उसको भी प्राय मेहरबानी सॉल्व करने की कोशिश करें। So that will help you to understand the concept that I have been trying to teach you in the page replacement algorithm. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। Till then, खुदा हाफिज, अल्लाह के बाद।